Good morning, dear students. In the previous class, we had started with the epithelial tissue. We have discussed all about the plant tissues, in which we have discussed meristematic tissues, simple permanent tissue and complex tissues. Now we are discussing about animal tissues, in which the first topic that we had started was the epithelial tissue. Some characteristics about epithelial tissue were already being discussed by us in the previous class. Epithelial tissue is one of the most dominant tissue that is present in the animal body because it will be present at almost all the regions. Whether it is forming a protective covering of an organ or whether it is the lining of any organ or any cavity or a duct, at all these places the epithelial tissue will be present. Some of the locations of the epithelial tissue are our skin. Other than skin, it is also present in the lining of the mouth. It is present in the alveoli of the lungs, which are for gas exchange. It is also present in the lining of the blood vessels. And therefore, there are many such locations where the epithelial tissue will be present. But at all these places, it will be either forming a protective layer or it will be forming a covering of any of the part of the body. Whether it is organ or a gland or a duct, at all these places epithelial tissue is present. We discussed that epithelial tissue के जो cells होते हैं, ये cells एक दूसरे से बहुत ही नजदीक located होते हैं और इनके बीच में spaces नहीं होती, मतलब intercellular spaces नहीं होती और ये सारे ही cells एक दूसरे से बहुत ही नजदीक located होते हैं. All these cells will be lying on a fibrous membrane which is known as basement membrane. So these were some of the characteristics of the epithelial tissue that we had discussed. So we are discussing further. So epithelial tissue, it will be forming the protective covering of an organ or a cavity. It will be forming a protective covering, and this protective covering will be either of an organ or it can be of any cavity. Cavity मतलब हमारी बॉडी में organs जो होते हैं वो अंदर से hollow होते हैं, तो अंदर जो hollow है तो वहाँ पे जो lining में जैसे कि stomach है, intestine है, हर एक organ के lining में epithelial tissue present होता है. Now any substance which has to enter into the cell or enter into the any organ, it has to at least cross this one layer thick epithelial tissue. So any substance has to cross at least one cell thick layer of epithelial tissue. For example, हम बात कर रहे हैं कि कैपिलरी में से ऑक्सीजन जो है that gets transported to a nearby cell. तो ये क्या हुआ? It has to cross the epithelium of capillary and it then has to enter into the cell. मतलब कोई भी सब्सटेंस है या गैस है उसे मूव करने के लिए या डिफ्यूज होने के लिए एटलीस्ट इट हैज टू क्रॉस अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड दैट विल बी द एपिथेलियल टिश्यू. एंड दिस शोज the very important nature of epithelial tissue, that is permeability of epithelial tissue. So this shows the permeability of epithelial tissue. अब epithelial tissue की permeability, ऐसा हमने वर्ड लिखा है,
इसका मतलब क्या होता है कि चलो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमने ऑक्सीजन जो है दैट इज बीइंग टेकन इन आवर लंग्स। लंग्स में ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? एल्वियोलाई, राइट? तो मान लेते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्वियोलाई जो एक लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। अब एल्वियोलाई के बाहर है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी इज गोइंग टू बी लाइंड अप बाय व्हिच सेल्स? एपिथेलियल सेल्स। एल्वियोलाई इज गोइंग टू बी लाइंड अप बाय व्हिच सेल्स? एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इट इज गोइंग टू बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम द कैपिलरी फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द कैपिलरी। तो डिफ्यूज होने के लिए उसे मिनिमम क्या क्रॉस करना पड़ता है? मिनिमम उसे एक सिंगल लेयर्ड सेल का एपिथेलियल टिश्यू क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और उस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी है, इसीलिए ही न्यूट्रिएंट्स कैपिलरी में से सेल्स में एंटर होते हैं। परमिएबिलिटी नहीं होती तो इट वुड नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द एनी अदर सेल और एनी अदर ऑर्गन, राइट? सो दिस शोज दैट इज importance in exchange of gases or diffusion of any nutrients, तो एपिथेलियल टिश्यू है, इसीलिए कोई गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। Another important thing is that all the epithelial cells will be lying on epithelial cells lie upon a fibrous non-cellular basement membrane, तो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं? एक नॉन सेल्यूलर लेयर पे प्रेजेंट है और उस लेयर को कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू अलग टाइप के क्यों होते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट particular region, the epithelial tissue can have different shapes of cells, right? जो ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही रैपिडली कुछ एक्सचेंज करना है, जैसे कि एल्वियोलाई और कैपिलरी, यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन बहुत ही जल्दी होना चाहिए, राइट? इमीडिएटली एज सून एज द ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द कैपिलरी, तो ही तो ब्लड उसे दूसरे पार्ट्स में पहुंचा पाएगा, दूसरे सेल्स तक पहुंचा पाएगा। तो ये डिफ्यूजन बहुत ही जल्दी होना चाहिए। तो जो जगह पे बहुत ही रैपिड ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है वहां पे एकदम फ्लैट साइड के सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के और उन्हें कहा जाता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जिन जगह पे सिक्रीशन या तो अब्जॉर्प्शन का काम है, कोई एंजाइम रिलीज करना है या तो कोई फूड को अब्सॉर्ब करना है, तो उन जगह पे कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो ऐसे सेल्स होते हैं जहां पे अलग फंक्शन है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन है या तो फिर कोई और एक्टिविटी है जैसे कि किडनी है, तो उनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, देन वी विल टॉक अबाउट पहले क्यूबॉइडल की बात करेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, and then we will talk about columnar
epithelial tissue. So we are here going to discuss about different types of epithelial tissues. तो सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं फ्लैट। सो सेल्स आर फ्लैट, क्लोजली linked to each other. They are present at those places where rapid diffusion has to occur. They are present at those places where rapid diffusion or rapid exchange of material has to occur. ठीक है, तो जल्दी से कुछ एक्सचेंज करने के लिए सेल्स की थिकनेस कैसी होनी चाहिए? बहुत ही कम, क्योंकि अगर सेल बहुत ही ज्यादा थिक होगा तो ऑब्वियसली एक्सचेंज जो है वो इजी नहीं होगा। यहाँ पे सेल्स कैसे हैं? बहुत ही थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। और थिन और फ्लैट सेल्स का रीजन ही ये है कि दे अलाउ अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल। सो वेयर आर सच टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू फाउंड? They are found in blood capillaries. They are found in blood capillaries and alveoli of lungs. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है तो वो कहाँ पे होता है। ऐसा कई बार 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज एल्वियोलाई ऑफ लंग। अब यही दो जगह क्यों? क्योंकि इन जगह पे एक्सचेंज बहुत ही जल्दी होता है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को रैपिडली डिफ्यूज कर देते हैं इनटू द सेल, राइट? और सिमिलरली एल्वियोलाई जो है वो रैपिडली डिफ्यूज कर लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, so that it can be exchanged very rapidly, right? तो यहाँ पे जो cells हैं, they are present at these locations. Moreover, जब हम skin की बात करते हैं, तो यही squamous epithelial tissue multiple layers में present होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका function exchange नहीं है, वहाँ पे उसका function protection है. So in the region of skin or in the lining of mouth मल्टीलेयर्ड होता है। क्या मल्टीलेयर्ड होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर की जगह पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और ये मल्टीपल लेयर्स जो होते हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग टिश्यूज, राइट? तो हमारी जो स्किन है या तो हमारे माउथ में जो बकल कैविटी की लाइनिंग है, ये दोनों कॉन्स्टेंटली डैमेज होते रहते हैं। स्किन इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, सो देयर आर मैक्सिमम चांसेस फॉर स्किन टू गेट डैमेज। You constantly eat the food, therefore your lining of mouth constantly comes in contact of food, and therefore wear and tear is very common in those cells. तो वहां पे अगर सिंगल लेयर होगा और वो डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फंक्शन कैसे करेगा? इसीलिए उन जगह पे स्क्वैमस टिश्यू तो होता ही है, पर स्क्वैमस किस फॉर्म में होता है? मल्टी लेयर होता है। और अगर मल्टी लेयर होगा तो क्या होगा कि उसका फंक्शन प्रोटेक्टिव रहता है। सो इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग टिश्यूज, राइट? सो एपिथेलियल टिश्यू में जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स एकदम ही फ्लैट होते हैं। आई होप यू कैन गेट द डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, right? You can draw that diagram also. I am just drawing it for the reference purpose over here. The cells of the squamous epithelium are flat. They don't have very regular boundaries. Irregular boundaries होती है। सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होती और ये रैपिड एक्सचेंज के लिए बने गए होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। यहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं?
ब्लड कैपिलरीज में और एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, यहाँ पे भी स्क्वैमस होता है पर सिंगल लेयर की जगह पे मल्टी लेयर होता है, और मल्टी लेयर जब होता है तो इसका मेन फंक्शन रहता है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे अबाउट क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यूज।